आरबीआई के गवर्नर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको ले चलते हैं। I would now like to provide an assessment of the current macroeconomic situation, both global and domestic. By all counts, the macroeconomic and financial conditions are austere. The global economy is inexorably headed into recession. The global manufacturing PMI contracted to an 11-year low in April 2020. The global services PMI recorded its steepest decline in the history of the index. Among advanced economies that have released GDP readings for Q1 of 2020, contractions were in the range of 3.4% to 14.2%. For emerging market economies, the growth rate ranged between 2.9% and minus 6.8%. EMEs face additional pressures in the form of capital outflows and asset price volatility from the bouts of turbulence afflicting financial markets. The plunge in crude prices has dried up budgetary revenues for oil exporters. On the other hand, oil importers have been denied terms of trade gains by the crushing blow to demand delivered by the pandemic. According to the UNCTAD, the value of global trade contracted by 3% in Q1. The volume of world trade can shrink by 13 to 32% in the current year as projected by the WTO. Global financial markets have calmed after a turbulent period in March and volatility has ebbed, but markets have generally been disconnected from the developments in the real economy. Relatively unsung, global policy response by central banks and governments has been unprecedented. Let me now turn to the domestic developments. Domestic economic activity has been impacted severely by the 2 months lockdown. The top 6 industrialized states in India that account for 60% of our industrial output are largely in the red and orange zones. High frequency indicators point to a collapse in demand beginning in March 2020 across both urban and rural segments. Electricity and petroleum consumption, which are indicators of day-to-day demand, have plunged into steep declines. The double whammy in terms of losses of both demand and production has in turn taken its toll on fiscal revenues. Investment demand has virtually been halted by a decline of 36%. को आप सुन रहे थे, बड़ा ऐलान यहां पर हुआ है। ईएमआई को लेकर आरबीआई ने बड़ा फैसला किया है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कटौती की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, सस्ते होंगे होम और ऑटो लोन। रिवर्स रेपो रेट में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया। रेपो रेट 4.4% से घटकर 4% हुआ है। रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। रिजर्व बैंक का बड़ा फैसला ईएमआई को लेकर, यहां पर रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। एक बार फिर हम आपको साफ कर दें, रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट में यहां पर कटौती की गई है, 4.4% से 4% किया गया है। और सस्ते होंगे होम और ऑटो लोन। तो ईएमआई को लेकर रिजर्व बैंक ने यहां पर यह बड़ा फैसला किया है। रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव फिलहाल नहीं किया गया है। आरबीआई का यह बड़ा ऐलान। अनिल कुमार बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर। अनिल, क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं आपको? जी, मैं बता दूं, अभी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल ही रही है और उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि रेपो दर में फिर से 0.40% की कटौती की है। यानी जो पहले 4.4% था वो घट करके अब 4% हो गया। इससे सीधा आम जनता के जेब पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने भी कर्ज ले रखा है, चाहे वो होम लोन ले रखा हो, कार लोन ले रखा हो, पर्सनल लोन ले रखा हो, एमएसएमई लोन रखा हो, कृषि लोन ले रखा हो, वो जो रेपो रेट से अब लिंक हो गए हैं सारे जो भी हम कर्ज लेते हैं। तो ऐसे में रेपो रेट में जैसे ही बिल्कुल अनिल, ये बताइए, होम लोन और ऑटो लोन सस्ते होंगे, ऐसे में होम लोन कितना सस्ता होगा? क्या इस बारे में कुछ फिगर्स अब तक सामने आई हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि कमोबेश जिस तरह से हम जितने टेन्योर का लेते हैं, कोई भी कर्ज हम जितने टेन्योर का लेते हैं, जितना क्वांटम में लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके बैंक उसको पास ऑन करती है। अब आज आरबीआई ने इसको 0.4% इसको कटौती की है रेपो रेट में। अब आप देखना होगा कि जो पीएसयू बैंक है इसका कितना पास ऑन करते हैं कंज्यूमर पर। इसके बाद ही कहा जा सकता है कि किसी भी
जो ग्राहक है उसका कितना जेब में फर्क पड़ेगा। जी तो अनिल, ये अब बैंकिंग सेक्टर तय करेगा, इसके बाद कैसे ये चीजें तय होंगी कि होम लोन कितना सस्ता होगा? ये कैसे समझा जा सकता है? हमारे दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो कैसे समझें, अगर होम लोन सस्ता होगा तो उन पर कितना फायदा होगा, कितना नुकसान, किस तरीके से, इसको कैसे समझाएंगे आप? जी मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जब हम किसी भी चीज के लिए कर्ज लेते हैं तो उसके लिए एक बेस रेट होता है। बेस रेट के ऊपर ही सारे जो मार्जिनल रेट तय करते हुए बैंक अपने अपने कर्ज देती है। लेकिन इसके बाद ये देखना होता है कि बैंक जैसे रेपो रेट कटौती की गई, रेपो रेट से लिंक जो भी कर्ज ग्राहक लेते हैं उसके आधार पर जितने परसेंट पे वो कम करते हैं उसी परसेंट पे उसको कैलकुलेट करना होता है। पर किसी आपने 30 लाख ले रखा है 25 साल के लिए, तो उसमें जो ईएमआई बैठेगा उसमें करीब बिल्कुल विस्तार से अनिल कुमार हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। तो यहां पर रिवर्स रेपो रेट पे कोई